we are in 2022 2022 में हम हैं and it's a year of fruitfulness. और ये फलवंत होने का साल है। If you understand what I'm going to talk today, तो आज जो मैं सिखाऊंगा अगर आप वो समझोगे, I am promising you मैं आपको वादा करता हूँ in the presence of God, प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूँ, you will have great fruit in your life. आपके जीवन में बहुत ज्यादा फल जरूर आएगा। Yeah. So last week I started with a basic subject called the Father's blessing. तो गए हफ्ते मैंने एक विषय शुरू किया, वो है पिता के आशीष। Point number 3. तो तीसरा मुद्दा, Yeah, because I've already told point 1, point 2. क्योंकि मैंने पहला और दूसरा मुद्दा दे दिया है पहले। Yeah. Genesis chapter 1 verse 28. उत्पत्ति 1:28। Then God blessed them. When did God bless them? कब प्रभु ने उनको आशीष दिया? I have a question to you. मेरा सवाल है आपके लिए, When did God bless them? कब प्रभु ने उनको आशीष दिया? Listen very carefully. ध्यान से सुनना। There was no sin when God blessed them. कोई भी पाप नहीं था जब प्रभु ने उनको आशीष दिया Listen था। very carefully. ध्यान से सुनना। All their needs were met. उनकी सारी जरूरतें पूरी हो गई थी। They were blessed people. वो आशीषित लोग थे। Yet in that state of perfection, लेकिन वो सिद्धता के माहौल में भी God is opening his mouth प्रभु उनका मुंह खोल रहे हैं and blessed them. और आशीष दे रहे हैं उनको। वाओ। Okay. So point number 3. तो तीसरा मुद्दा, In perfection also you need blessing. सिद्धता के माहौल में भी आपको आशीष की जरूरत पड़ती है। Only 3 amen came. Amen. Even in perfection, that means all your needs are met. You are so blessed. Yet God says you require my blessing. परिस्थिति के सिद्धता की परिस्थिति में भी Yeah. जब आपकी सारी जरूरतें पूरी हो गई है, फिर भी प्रभु कह रहे हैं तुम्हें मेरे आशीष की जरूरत है। Before sin entered, God said, I bless them. पाप ने प्रवेश किया उसके पहले प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ। Okay. The word bless means God's ability is released. वो शब्द आशीष का मतलब है प्रभु की क्षमता स्वतंत्र होती है। Yeah, it's being released over Adam and Eve. आदम और हवा के ऊपर प्रभु की क्षमता स्वतंत्र हुई। Suppose you are doing extraordinary well. मानो आप बहुत अच्छा कर रहे हो जीवन में, Your marriage is good. आपकी शादी अच्छी चल रही है, You are earning 1 crore every month. हर महीने 1 करोड़ कमा रहे हो। Come on. You of little faith. You're doing extremely well. बहुत अच्छा कर रहे हो जीवन में, You मानो have 1 son. एक बेटा, No, 1 wife. Sorry, 1 wife. एक पत्नी, You have 6 children. 6 बच्चे, You have 4 cars. 4 गाड़ी, 12 servants. 12 नौकर, All your 5 fingers are in the ghee. 5 उंगलियां घी में है। But still, फिर भी you will require somebody to speak blessing over you. That's what I'm आपको saying. जरूरत है कि कोई आपके ऊपर आशीष बोले। You will require. आपको ये जरूरत है। Okay, are you with me? Amen. So in your prosperity, remember to be humble. तो आपके जो उन्नति है उसमें याद रखना नम्र होना। Yeah, you may be the most beautiful, you may be that Miss India. Just you became Miss India yesterday night. मानो कल रात को आप मिस इंडिया बन गए। The whole world is under your feet. पूरा संसार आपके चरणों में है। But still, फिर भी what do you need? आपको किसकी जरूरत है? Blessing. आशीष। So good morning, church. I want to tell you, no matter where you are in life, I have a word for you. You need Father's blessing. आप कहीं भी हो जीवन में, मैं कहना चाहता हूँ आपको पिता के आशीष की जरूरत है। Can I hear an amen there? All right. Now, when the blessing was released, जब वो आशीष स्वतंत्र किया गया था, it is God's power being released. वो परमेश्वर का सामर्थ स्वतंत्र किया गया था। Now remember, please be with me. मेरे साथ रहना। Have you ever seen somebody follows you? क्या आपने देखा है कोई आपका पीछा करता है? Every time, wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, somebody follows you, कोई आपका पीछा करता है, पता Who है? is it? कौन? Huh? Your shadow. आपकी परछाई है। I have good news. मेरे पास अच्छी खबर है। Same way, वैसे ही blessing spoken, they follow you. जो आशीष बोले गए ना, वो आपका पीछा करते They हैं। follow you. वो आपका पीछा करते You हैं। go to London, लंदन जाओ, blessing will follow वो you. आशीष आपका पीछा You करेंगे। go to Pakistan, पाकिस्तान भी जाओ, blessing will follow वो you. आशीष आपका पीछा You करेंगे। go to Kopargaon, कोपरगांव भी जाओ, blessing will follow you. आशीष Because the आपका- spiritual thing. क्योंकि ये आत्मिक बात है। You know the prodigal son? अब वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते उसने पापा को क्या बोला? मेरा जितना भी हिस्सा दे दो.
पापा ने दिया बराबर, लेकिन क्या नहीं दिया? हाँ, वही तो बात। That son, he took his inheritance and he went away. वो बेटा अपनी विरासत लेके चला गया। Okay. Do you know what happened? पता है क्या हुआ? He lost everything. सब कुछ उसने खो दिया। If you don't get blessing, अगर आशीष नहीं मिलता आपको, failure will follow you. तो जो असफलता है वही आपका पीछा करेगी। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? नहीं पास्टर, मैं तो मेरा भी नया जन्म हुआ है प्रभु में। हाँ, लेकिन वही नया जन्म वाले प्रभु व्यक्ति से प्रभु बात कर रहा है। Yes. हाँ, because for God relationships are very important. क्योंकि प्रभु के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। You can't despise people that God has put in your life and say, now Papa, you don't know who I am. आप प्रभु ने जो लोगों को आपके जीवन में रखे उनको आप तुच्छ नहीं जान सकते और बाद में ऐसे कहो पापा आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। Do you know Joseph after he became a governor? आप जानते हो यूसुफ गवर्नर होने के बाद To receive blessing from his father, you know what he did? अपने पिता से आशीष पाने के लिए पता है उसने क्या किया? He went on his knees. अपने घुटनों पे गया। When was the last time you ever went on your knees to your father and said, "Can you please bless me?" कब था वो आखिरी बार जब आप आपके पिता के पास घुटनों पे गए और कहा कि क्या आप मुझे आशीष दोगे? ऐसा कैसा पास्टर, ये थोड़ी हमारा कल्चर है। तुम पता नहीं कौन से कल्चर में जी रहे हो हम लोग। You know Pharaoh जो फैरो था। Pharaoh wants blessing from Jacob. फैरो को याकूब से आशीष चाहिए। King wants a blessing from a normal man. राजा जो है उसको आम आदमी से आशीष चाहिए। Why? क्यों? Because he recognized this man as authority to bless me. क्योंकि उसने पहचाना कि ये व्यक्ति के पास अधिकार है मुझे आशीष देने का। But the fathers have to bless. लेकिन पिता ने आशीष देना है। Can I hear an amen? So here, in all its perfection, still God said, "I bless ये you." पूरी सिद्धता की परिस्थिति में प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। Why? क्यों? Because needs will rise up, क्योंकि जरूरतें उठने वाली है for which they will require divine ability. जिसके लिए उनको प्रभु की ओर से वो क्षमता लगने Romans वाली है। 4:17. रोमियो 4:17। Romans 4:17. We believe in a God, हम ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं okay, who speaks, जो बात करते हैं and when he speaks, और जब वो बोलते हैं he will speak what he wants to see. जो वो देखना चाहते हैं वो बोलते हैं And as soon as he speaks it, it will come forth. और जैसे ही वो बोलते हैं वो होता है। Yeah. So the moment your father speaks over you, जिस वक्त आपके पिता आपके ऊपर बोलते हैं the blessing is coming with you. आपके साथ वो आशीष आ रहा है। Yeah, it's walking with you. आपके साथ चल रहा है। And when a need rises up, और जब एक जरूरत आएगी आपके जीवन that में need will be met. वो जरूरत पूरी हो जाएगी Because your father has spoken over you. क्योंकि आपके पिता ने आपके ऊपर बोला है। Number four. चौथा मुद्दा, Number 4. Fathers can withhold your blessings. पिता जो है वो आपके आशीष अपने पास ही रख सकते हैं। Yeah. Genesis chapter 49 verse 3 and verse 4. उत्पत्ति 49 में 3 और 4। Jacob has 12 sons. याकूब के 12 बेटे थे। One day, he knows his time to die has come. वो जानता था कब उसके मरने का समय अभी आ गया He है, gathers all the 12. तो अपने 12 बच्चों को बुलाता है। Listen very carefully. ध्यान से सुनना, He gathers their children also. उनके बच्चों को भी बुलाता है। Your father can not only bless you, आपके पिता सिर्फ आपको ही आशीष नहीं देते, he can bless your children, आपके बच्चों को भी आशीष दे सकते हैं and it will go downwards also. और नीचे भी जाएगा। Okay, now, so he goes to the first one. तो पहले बेटे के पास जाते हैं। Yeah, before he comes here, he says, "Come together. I want to tell you what's going to happen with you." वो 12 बच्चों को बुला के कहता है मेरे पास आओ, मैं बताना चाहता हूँ क्या होने वाला है। And the Bible says it was time for him to go. और बाइबल में लिखा है वो समय था उसके मरने का। All you children, listen to me. सब बच्चे सुनना, What your father will speak over you on his deathbed will happen. वो आखिरी क्षण में भी जो आपके पिता आपके ऊपर बोलेंगे ना वो जरूर होने वाला है। वो बिलीवर रहो, अनबिलीवर रहो, जो भी रहेगा वो होने वाला है। Serve your father and your mother, अपने माता पिता की सेवा करो so that when they are ready to go, they should speak a blessing and go. ताकि जब वो तैयार है जाने के लिए होने दो वो आपके ऊपर आशीष बोले और फिर जाए। Suppose you know your dad is getting ready, he knows his time is up, मानो आपके पिता तैयार हो रहे, वो जानते कि वो अभी जाने वाले हैं and maybe he's on the bed और बिस्तर पे है and he calls you, और आपको बुलाते हैं। and he calls you and just lays his hand and says it will go well with you. वो आपको बुलाकर कहते हैं कि तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ। That's it. तो हो गया, It's sealed.
उसके ऊपर मोहर लग गई। Your journey will see success in Jesus' name. आपकी यात्रा में आप सफलता जरूर देखोगे यीशु के If your father is he's sick, नाम। आपके पिता अगर बीमार है, he's on the bed, वो बेड पे है and you have not met him, और आप मिले नहीं उनको, it's not going to work. I tell you again with all my heart, the last blessing is the most powerful one. मैं दिल से कहना चाहता हूँ जो आखिरी आशीष है सबसे सामर्थ्यशाली आशीष होता है। I missed it. मैंने वो गवा दिया। I missed it. If I would have known this 4 years before, I would have not left my dad like that. अगर ये बात मैं 4 साल पहले जानता था तो मैंने मेरे पिता को ऐसे नहीं छोड़ा होता। It's not that I did not take care. I took care of him. But you have to be there in that journey. When they are finishing that journey, you be with them and they will open their mouth and they'll bless you. तो ऐसा नहीं कि मैंने सेवा नहीं की, मैंने की, लेकिन वो जो आखिरी क्षण था तब मैं उनके पास नहीं था, क्योंकि वो आखिरी क्षण में वो जरूर मुंह खोलते और बोलते हैं। God has given that chair. प्रभु ने उनको वो कुर्सी दी है। You know the prodigal son? अब वो उड़ाऊ पुत्र जानते हो, He met failure. वो असफल हुआ, Then he realized, उसे एहसास हुआ I've done a mistake. मैंने गलती की है। That's important. वो महत्व का है। He realized, I've done a mistake. उसे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। And he said, I'm going back home. उसने कहा मैं मुड़ के वापस घर जा रहा हूँ। मेरे बाप के पास जा रहा हूं मैं। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। I'm going back home. मैं घर जा रहा हूँ वापस। And when he came home, do you know what happened? जब वो घर आया पता है क्या हुआ? He said, make me a servant. उसने कहा मुझे एक सेवक बना लो। था कौन वो? बेटा। बेटा। लेकिन जब घर गया वो क्या कह रहा है? मुझे एक दास करके लो। Not saying, you know, make me a son again. वो ऐसा नहीं कह रहे मुझे फिर से बेटा बनाओ। Look at his attitude. उसकी मनोभावना देखो। Because of the brokenness in his heart, उसके हृदय के टूटेपन के कारण the father ran to him, पिता दौड़ के उसके पास गए, restored him back. उसे फिर से पुनर्स्थापित किया। लेकिन जब वो घर आया ना, वो ये नहीं कह रहा मुझे क्या मिलेगा घर में। You have to learn. आपने सीखना है। Otherwise, we will be like the prodigal son walking around and we will not taste success, because for success, you need the blessing of the father. वरना हम उड़ाऊ पुत्र के जैसे यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे लेकिन सफलता नहीं पाएंगे, क्योंकि सफलता के लिए वो पिता के आशीष की जरूरत पड़ती है। And I love that father और मुझे वो पिता बहुत पसंद है, because he never controlled him. क्योंकि उन्होंने कभी नियंत्रण नहीं रखा उसके ऊपर। Okay, so he gathers all the children, okay? तो याकूब अपने 12 बच्चों को इकट्ठा करता है, He goes to the first one. पहले के पास जाता है। What is his name? उसका नाम क्या है? Reuben. रूबेन। Okay. Now Reuben, he was the leader among the 12 brothers. वो 12 बच्चों में से वो अगवा था। Yeah, he was the leader. वो अगवा था। He had excellence in his life उसके जीवन में एक बहुत अच्छा स्तर था, एक्सीलेंस, and he was going ahead. और वो आगे बढ़ रहा था। But suddenly he made a mistake. अचानक उसने एक गलती की। What was the mistake? क्या गलती की? He slept with his father's wife. अपने पिता की पत्नी के साथ वो सोया। I'm Jacob पास्टर याकूब है and this is my son Reuben. और ये रूबेन है, And I tell him, और मैं कहता हूँ now it's time to bless before he goes. ये समय है आशीष देने का जाने के पहले। So he goes into his past तो वो उसके अतीत में जाता है and he says to him, और उसे कहता है this is what you did. ये तुमने किया था। पापाओं को तकलीफ नहीं देना। आमीन। हमें आपका बहुत धीमा है। पापाओं को तकलीफ नहीं देना है। हाँ, you may not agree, that's okay. आप उनके साथ सहमत नहीं होंगे, वो ठीक है, But don't trouble them. लेकिन उनको सताओ मत। So he says to him, you are like a flood water. That means flood water means वो boundary से बाहर आता है. Okay. बाहर के पानी के समान तुम हो। Yeah. So also in the same way, what you did is with your sexual desire, you brought it out and you expressed it in my married life. तुमने क्या किया? तुमने तुम्हारी लैंगिक इच्छा को मेरे शादी के जीवन में प्रकट किया। So what is going to happen? तो क्या होने वाला है? So you no longer deserve the place of honor. तो अब तुम योग्य नहीं हो ये आदर के स्थान के। What happened? क्या हुआ? Blessing was not released. आशीष स्वतंत्र नहीं हुआ। I pray मेरी प्रार्थना है,
this afternoon, ये दोपहर के समय in the name of Jesus, यीशु के नाम में that your fathers आपके पिता will not withhold the blessing, वो आशीष को अपने पास पकड़ के नहीं but रखेंगे, release their blessing over लेकिन वो you. आपके ऊपर स्वतंत्र जरूर करें। Okay, so there are 12 brothers, 12 भाई थे and Israel is made of 12 tribes. और इज़राइल जो है 12 गोत्रों से बना है, And this tribe, और ये जो गोत्र है it struggled from this moment. ये क्षण से वो हमेशा संघर्ष करते रहे। Now listen very carefully. ध्यान से सुनना, When blessing comes, जब आशीष आता है life becomes easy. जीवन आसान हो जाता है। When blessing comes, जब आशीष आता है prosperity will hit your life. तो संपन्नता आती है आपके जीवन When में। blessing comes, जब आशीष आता है favor of God will hit your life. प्रभु की कृपा आ जाती है आपके जीवन में। Now listen, sad story, sad. लेकिन ये दुख की बात So when the historians look at this tribe, है। तो जब जो इतिहास पढ़ते हैं, जब वो ये गोत्र को देखते हैं, from here till the time of Moses, यहाँ से मूसा के समय तक they saw there is no great man over here in this tribe, उन्होंने देखा कि ये गोत्र में से कोई भी ऐसा महान व्यक्ति आया ही नहीं, no prophet, कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, no great warrior, कोई बड़ा योद्धा नहीं आया, no judges. कोई न्यायाधीश नहीं आए, But this tribe always troubled Moses, always. लेकिन ये गोत्र ने हमेशा मूसा को तकलीफ दी। Yeah. Always, you open the Bible, you will come to know it. आप बाइबल खोलोगे तो आपको समझेगा, They always troubled him. वो हमेशा मूसा को तकलीफ दे रहे हैं। Now it's time for Moses to go home. अब ये समय था मूसा को घर जाने का। Now I will bring the spiritual father. अब मैं आत्मिक पिता के बारे में बात कर रहा हूँ। Natural father. स्वाभाविक पिता हो गए, Now I will bring the spiritual father. अब आत्मिक पिता। Let's see what the spiritual father did. तो आत्मिक पिता ने क्या किया वो देखेंगे। Deuteronomy 33 verse 6. व्यवस्था विवरण 33 में 6। Now Moses is calling all the 12 tribes. अब मूसा सभी 12 गोत्रों को अपने पास बुला रहा है। So he picks up Reuben. Come तो here, रूबेन come को here. बुलाता है। Come here, come here, come here. हाँ, okay. अभी उसके सामने रूबेन नहीं खड़ा है, रूबेन के लोग खड़े हैं, उसकी पीढ़ी खड़ी है। यस, लेकिन जब मूसा बात करता है, किससे बात कर रहा है? रूबेन से बात कर रहा है। वाओ, Come on, church, come on. यस यस, Come on. उसकी पीढ़ी खड़ी है, but he speaks to Reuben. लेकिन वो रूबेन से बात कर रहा है। So when he looks at this रूबेन का descent, तो ये रूबेन के जो बच्चे हैं उसको जब वो देखता है he looks at him and says, Reuben, और वो कहता है रूबेन, because Reuben, that curse is working over you. क्योंकि रूबेन तुम्हारे ऊपर वो श्राप काम कर रहा है, But now I say something over you. लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर कुछ बोलता हूँ। You will live. तुम जियोगे, You will not तुम die. मरोगे नहीं। You will तुम live. जियोगे, You will not तुम die. मरोगे नहीं। And then he says, और फिर वो कहता है may his people what? Multiply. उन्हें तो उसके लोग बहुगुणित हो जाए। That's a blessing. वो आशीष है। The natural father spoke over the son, स्वाभाविक पिता ने अपने बेटे के ऊपर बोला, but a spiritual father saw the problem. लेकिन आत्मिक पिता ने समस्या को देखा। So the physical father looked at him and he spoke and he did not bless him. तो स्वाभाविक पिता ने उसकी ओर देखा और आशीष नहीं दिया। आशीष नहीं दिया यानी you are going to fail. इसका मतलब असफल ही होने वाले हो। असफल होने वाला. What did Moses do? लेकिन मूसा ने क्या किया? Please write if you're writing. लिख लो। He identified the curse. उसने वो श्राप को पहचाना। पहचाना. See, you say, I walk with Jesus आप कहते हो मैं यीशु के साथ चलता हूँ, and no fruit. लेकिन और कोई फल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता. यीशु ने कहा मैं दाख लगता दाख लगता। हाँ, आप कौन हो? डाली। तो आपके अंदर क्या होना है? फल होना है. करेक्ट. Then why there is no fruit? लेकिन फल क्यों नहीं है फिर? Something is wrong somewhere. कुछ तो गड़बड़ है, Something is wrong. कुछ गलत है कहीं। And Moses identified it. और मूसा ने पहचाना। I pray in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ यीशु You will के नाम। identify your problem. आप आपकी समस्या को पहचानोगे। पहचानो यीशु के नाम में. And as soon as he identified, और जैसे उसने पहचाना, number 2, दूसरा he repented. उसने पश्चाताप किया। That's important. Psalm 90 verse 14. भजन संहिता 90 में 14, He says, satisfy us with your mercy. प्रभु आपकी दया के साथ हमें तृप्त करो। When? कब? Now. अब। When do you want blessing? कब आपको आशीष चाहिए? Not tomorrow. कल नहीं, Now. अब चाहिए। See, get desperate. आपने व्याकुल होना है। फल नहीं है ना, get desperate because God has something for you. अगर फल नहीं है तो व्याकुल हो जाओ, क्योंकि प्रभु के पास है कुछ आपको Yeah. देने के लिए। Do you know there's a man in the Bible
who did not leave the Lord whole night. He was wrestling with him. पता है पैर बाइबल पकड़ में के रखा. एक व्यक्ति है बाइबल में जिसने प्रभु को पूरी रात छोड़ा नहीं, पैर पकड़ के रखा. What did he want? क्या चाहिए था उसे? हाँ? आशीष. सोना चाहिए था, चांदी चाहिए था, blessing चाहिए था उसको. आशीष. God must have told, tomorrow I'll come again. प्रभु ने कहा होगा कल आऊंगा. नहीं, in the morning I'll come when you're in the आऊंगा. field. When? Now. अब. वाओ. Now. So the moment he saw the problem, तो जिस वक्त मूसा ने समस्या देखा, he said, Reuben, come here. उसने कहा रूबेन यहाँ आओ. Let's go to the Lord. हम प्रभु के पास जाएंगे. Ask for mercy. दया मांगेंगे. How do you reverse a curse into a blessing? आप एक श्राप को आशीष में कैसे बदल सकते हो? Identify it. पहले पहचानना पड़ता है. Repent of it. पश्चाताप करना होता है. And then next, और उसके बाद somebody will speak it over you. किसी ने आपके ऊपर बोलना है. Spiritual fathers can never take the place of your natural father. जो आत्मिक पिता है आपके स्वाभाविक पिता का स्थान कभी नहीं ले सकते. And your natural father cannot take the place of your spiritual father. और आपके स्वाभाविक पिता आपके आत्मिक पिता का स्थान नहीं ले सकते. It doesn't work. वैसा नहीं होता है. If God blesses a person, अगर प्रभु nobody can curse that person. अगर प्रभु कोई व्यक्ति को आशीषित करते तो कोई भी उसे श्रापित नहीं कर सकता. If God withholds the blessing, अगर प्रभु आशीष को अपने पास ही रखेंगे nobody can bless you. तो कोई आपको आशीष दे ही नहीं सकता. Nobody. कोई नहीं आपको आशीष दे सकता. Even 10,000 people come and say, I bless you, it will not work. 10,000 लोग आके भी कहेंगे मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, लेकिन वो काम नहीं करेगा. Joseph came with his 2 children. एक बार यूसुफ आया अपने 2 बच्चों के साथ. Jacob was very old, I think 146. याकूब बहुत बुजुर्ग था, शायद 146 साल का. And he can't see properly. और देख नहीं पा रहा था. But he was told, your son has come. लेकिन उसको कहा गया कि यूसुफ आया है. So suddenly he sat on his, he was lying down, he sat. वो लेटा था, वो उठ के बैठा बिस्तर पे. And Jacob began to talk to him. और याकूब उसे बात करने लगा. Then he said, Jacob is saying, who has come with you? तो याकूब ने पूछा ये तुम्हारे साथ कौन आया है? He said, God gave me 2 sons. यूसुफ कहता है प्रभु ने मुझे 2 बेटे दिए हैं. मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो. God gave me 2 sons. प्रभु ने मुझे 2 बेटे दिए हैं. सब प्रभु का ही नाम था. Yes. याद में रखना, कितना भी तुम्हारा प्रगति हो, प्रभु को जोड़ते जाओ यीशु के नाम में. Amen. God gave me 2 sons. प्रभु ने मुझे 2 बेटे दिए हैं. They are with me. वो मेरे साथ आए हैं. So he said, oh, I want to bless them. I want to bless them. याकूब कहता है मुझे उनको आशीष देना है. Bring them close to me. मेरे करीब लेकर आओ. To be blessed, आशीष पाने के लिए you have to get close. आपको करीब आना पड़ता है. Let me say, all you children, when your father talks to you, सभी पिता बच्चे जब आपके पिता आपसे बात करते हैं ना, be in a posture which shows respect to them. तो ऐसे आपके हाव भाव होने चाहिए जो आदर दिखाते हैं. If your dad is sitting अगर आपके पिता बैठे हैं and your dad says, sit down, I want to talk to और you. आपके पिता कहते बैठो मैं बात करना चाहता हूँ. Some of us, what we do, हम में से कुछ लोग क्या करते हैं? I'll not sit. मैं नहीं बैठूंगा, I'll stand. मैं खड़ा ही रहूंगा. Learn to respect. आदर देना सीखो. Learn to respect. आदर देना सीखो. They may not be okay, but still you have to learn to respect. वो ठीक नहीं भी होंगे लेकिन आपको आदर देना सीखना है. सीखना है. मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपको बताता हूँ. अगर एक बुजुर्ग आदमी आपके सामने आया ना, तो जवान लोगों ने कुर्सी से उठना है. ऐसे मेरे बाइबल में लिखा है. इस संस्कृति को आप आपके जीवन में घर में ले आओ यीशु के नाम में. It's not a forced submission. It's not forced. It's a you understand God's heart. You say, this is how God says, so I'm going to do it. ये दबाव नहीं है, लेकिन आप प्रभु के हृदय को आपने समझना है और उसके बाद कहना है हाँ मुझे ये करना है. Yeah, because that's the heart of God. क्योंकि वो प्रभु का हृदय है. That's why I'm going to do it. इसलिए मैं करने वाला हूँ. कितना भी तेरा डैडी पागल होगा ना, तो भी चलेगा, लेकिन respect. Amen. So he said, bring both of them close to me. Bring them. उसने कहा दोनों को मेरे पास लाओ. And Bible says he
hugged them, बाइबल में लिखा है उनको गले लगाया, he kissed them, चूमा, and he was going to release the blessing. और वो आशीष स्वतंत्र करने ही वाला था। So what the Bible says, he brought both the children out of his lap. तो बाइबल में लिखा है अपनी गोदी से दोनों को बाहर लाया, हाँ, यूसुफ ने दोनों को नीचे लाया, and then he bowed before his father bowed. और यूसुफ अपने पिता के सामने झुका। Yeah. आपको पता है blessing कैसा आता है? आशीष कैसा आता है? Hebrews 7:7. इब्रानियों 7:7। It always comes from the one who is on a greater level to a lower level. जो ऊंचे स्थान पर है उससे जो नीचे स्थान में उसके ऊपर आता है। आप बोलोगे मैं अभी 1 करोड़ कमाता हूं, मेरे पापा सिर्फ 20,000 कमाते। पैसे का करोड़ नहीं, उनको तुम्हारे ऊपर अधिकार दिया गया है क्योंकि वो तेरा बाप है। आप बोलोगे नहीं लेकिन मैं भी अभी बाप बन गया हूं। ये देखना, स्क्रिप्चर खोलो। फादर स्टेज अ फादर, सन स्टेज अ सन। पिता पिता ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है। Do you know who is he? Who was he? यूसुफ कौन था? Yeah, he has saved Egypt. उसने मिस्र देश को बचाया, He has saved Jacob's family. याकूब के परिवार को बचाया। He's a savior. वो ऐसे बचाने वाला व्यक्ति था। But लेकिन for blessing, आशीष के लिए he bows. झुकता है वो। जो झुकेगा ना उसके ऊपर डेफिनेटली आने वाला है। Draw closer to your father. अपने पिता के करीब जाओ।